Good morning, students. This is Anil Kumar Sawani, and in the last class, we were discussing the exercise 5.2. The last question of exercise 5.2 is the question number 15 is if x1, y1, x2, y2, and x3, y3 are the vertex and small a is the side of an equilateral triangle. Means एक equilateral triangle है and whose vertex are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 and the each side of an equilateral triangle is denoted by small a. Then prove that क्या prove करना है determinant x1, y1 2, x2, y2 2, x3, y3 2 का square equals to 3a की power 4. So solution if x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the vertices of an equilateral triangle, then area of triangle if x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the vertices of an equilateral triangle, then area of triangle ABC equals to 1 upon 2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 and 1. This is the formula for finding the area of any triangle if the vertex x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are given. Means हमें जब किसी triangle के vertex given हो x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then the formula for finding the area of any triangle, area of triangle ABC, इस triangle को मैंने name ABC दिया है, then the area of triangle ABC is equals to 1 upon 2 determinant x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1. This is equation first. And question is and is the side of an equilateral triangle is already also given in this question. If small a is a side of an equilateral triangle, then we know that the area of an equilateral triangle is if the side is given root 3 upon 4 side square. Area of equilateral triangle ABC equals to root 3 upon 4 side square. And the value of side is a, then root 3 upon 4 a square. This is the equation second. Okay, clear? If x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are the vertex of an equilateral triangle and we know that if the vertex are given, then the area of triangle ABC is equals to the 1 upon 2 determinant x1, y1 1, x2, y2 1 and x3, y3 1. And is the side of an equilateral triangle, and we know that if the side is given of an equilateral triangle is that in which all of three sides are equal and the value of each side is small a. And if the side of equilateral triangle is given, then the area of an equilateral triangle ABC equals to root 3 upon 4 side square and the value of side is smaller than the root 3 upon 4 a square. This is the area of triangle ABC and this is also the area of triangle ABC. But ये formula कब apply होता है when the vertex of triangle ABC are given, और ये formula कब apply करना है when the value of side of triangle ABC is given. But ये दोनों ही area कौन से triangles के हैं ABC के, इसलिए दोनों areas कैसे होंगे equal होंगे. Then from equation first and second, from equation first and से क्या करना है, हमें दोनों एरियाज को इक्वल रखना है क्योंकि दोनों ही एरियाज कौन से ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड दिस इज आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों ही एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं। ये हमने वर्टेक्स वाला फार्मूला अप्लाई किया बिकॉज़ हमें ऑल ऑफ थ्री वर्टेक्स आर गिवन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यहाँ हमने साइड वाला फार्मूला अप्लाई किया बिकॉज़ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द एरिया इज √3/4 a स्क्वायर, और ये दोनों ही ट्रायंगल एबीसी के एरिया हैं, इसलिए दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूफ करना, प्रूफ करके हमें आंसर ये लेके आना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 equals to √3/4 a square, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 से 4 2 टाइम्स कट हो जाएगा, देन x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1 equals to √3/2 a square। अब आप सोचिए कि इसके अंदर ऐसा क्या चेंज किया जाए कि हमें अपना क्वेश्चन इसके दोनों के इक्वल प्रूफ करना। देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 को 2 2 2 से रिप्लेस करना, तो मुझे क्या करना होगा, इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। If we multiply this determinant 2 then we also divided this determinant by 2, क्योंकि हम अपनी तरफ से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसको देखिए फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम भी सेम है, बट थर्ड कॉलम मुझे 1 1 1 को रिप्लेस करना है 2 2 2 से, तो मुझे इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन जब मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना होगा। देन टू डिवाइडेड बाय 2, then x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 equals to √3/2 a square। This 2 is multiplied by the third column, column C3 is multiplied by 2, okay, then 1/2 डिनोमिनेटर का 2 यही है, बट न्यूमरेटर के 2 से मैंने थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट का रूल पता है। डिटरमिनेंट में हम कॉमन भी 1 रो या 1 कॉलम में से ही ले सकते हैं, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो भी हम एक कॉलम या एक रो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स में क्या होता था, कॉमन लेना हो या मल्टीप्लाई करना हो वो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता था, बट डिटरमिनेंट में ओनली 1 रो या 1 कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। देन वी मल्टीप्लाई बाय 2 विद द थर्ड कॉलम, देन x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 2 2 2 equals to √3/2 a square। √3/2 a square, 2 से 2 कट, x1 x2 x3 1 1 y2 y3 2 2 2 equals to √3 a square। अब देखिए अपना क्वेश्चन प्रूफ हुआ क्या, हमें क्या प्रूफ करना था, x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3a की पावर 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल एबीसी के वर्टेक्स गिवन थे x1 y1 x2 y2 and x3 y3। सो फर्स्टली वी विल अप्लाई द फार्मूला व्हेन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर गिवन। द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड
A is the side of equilateral triangle is given. Here side of equilateral triangle is small a, then we apply the formula of an equilateral triangle. Then the area of equilateral triangle ABC equals to root 3 upon 4. Side square means root 3 upon 4 A square. दोनों ही एरिया कौन से ट्रायंगल्स के एरिया, मतलब दोनों ही कौन से ट्रायंगल्स के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और जब दोनों ही सेम ट्रायंगल्स के एरिया हैं तो दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने दोनों एरियाज के फॉर्मूले को इक्वल किया, 2 से 4 2 टाइम्स कट हुआ। अब जो प्रूफ करना है उसको देखना है कि हम फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम सेम है, बट हमें थर्ड कॉलम को 1 की जगह 2 बनाना है। देन वी मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 देन वी आल्सो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम अपनी तरफ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से हमें उसको डिवाइड भी करना होगा। मल्टीप्लाई करने वाले नंबर को मैंने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो थर्ड कॉलम बिकम्स 2 2 2 एंड 1/2 के 2 को मैंने राइट हैंड साइड के 2 से कैंसिल कर दिया। देन x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 इक्वल्स टू रूट 3 a स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए मुझे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर दोनों तरफ करना होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन both side, then x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 का स्क्वायर एंड रूट 3 a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। देन x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट 3 is 3, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर is a की पावर 4। So this is left hand side and this is right hand side, so hence proof। Okay, clear? Noted। I am going to start miscellaneous exercise 5th, where our first question is if A equals to 1 minus 1 2 3, this is a square matrix of the order 2 by 2, then find the A inverse। means हमें इस मैट्रिक्स A का A inverse means inverse of matrix A find करना है। then what is the formula for finding the A inverse? A inverse equals to 1 upon determinant A adjoint A। हमने एक्सरसाइज 5.1 में काफी क्वेश्चंस किए जहां हमने मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना था। सो फर्स्टली वी विल रिक्वायर द टू वैल्यूज फॉर फाइंडिंग द A inverse। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट A equals to determinant 1 minus 1 2 3, 1 3 जा 3 plus 2, then the value of determinant is 5 and after then we find the adjoint A। adjoint of matrix A कैसे बनता है, उसके लिए हमें each elements के कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं and each element is replaced by its cofactor and after then we taking the transpose of this cofactor matrix, then this is the adjoint of matrix है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले सभी एलिमेंट्स के हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। कोफैक्टर्स आपको अच्छी तरीके से फाइंड करना आता है। जिस भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना हो उस एलिमेंट्स वाली रो एंड कॉलम को हम रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स की जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वही उसका कोफैक्टर होता है। एंड आफ्टर देन वी अप्लाई द नेगेटिव और पॉजिटिव साइन व्हिच डिपेंड्स ऑन द sum of rows and column are even or odd। if the sum of rows and column are even then we apply the positive sign and if the sum of rows and column are odd then we apply the negative sign। फिर सभी एलिमेंट्स को उसकी कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही अपना एडजॉइंट ऑफ A होता है। आफ्टर देन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट A और एडजॉइंट A की वैल्यू पुट करनी और उससे जो बनेगा दिस इज of the inverse of matrix A means A inverse। okay, second question भी यही है, if matrix A equals to this is the matrix of order 3 by 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की, बट क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की। देन फाइंड द A इनवर्स। तो वही क्वेश्चन सेम है, 1 2 by 2 का है 3 by 3 का है। तो फर्स्टली हमें एक तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। और हमें पता है 3 by 3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 6 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। इसका एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू एनी रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और अकॉर्डिंग टू एनी कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी के अकॉर्डिंग भी हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं और उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ adjoint A and for finding the value of adjoint A firstly we will find the cofactor of each element।
हम ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Fij, F11, F12, F13, F21, F22, F23 and third rows के F31, F32, F33 and each cofactor is replaced by each element is replaced by its cofactor and we taking the transpose of this cofactor matrix is the adjoint A और जैसे दोनों वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे then we find the value of A inverse. Okay, the question number 3 repeat हुआ है, same question repeat हुआ है exercise 5.1 का first question. If matrix A equals to, this is the square matrix of order 3 by 3 is a singular matrix and we know that what is the singular matrix? If the value of determinant A is equals to 0, if the value of determinant A is equals to 0, then this is a singular matrix, means that we cannot find the inverse of this matrix because जब determinant A की value 0 होगी और 1 को 0 से divide करेंगे then we get the infinite, so we cannot find the inverse of this singular matrix. तो singular matrix क्यों है? तो singular matrix की condition apply कर दें, हम क्या लिखेंगे? matrix A is a singular matrix, so determinant A equals to 0. इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू में 0 हमारा चलता जाएगा और इसका एक्सपेंशन करके उसको 0 के इक्वल रख के हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई करनी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 0. इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वल्स टू में 0 कंटीन्यूअसली चलता जाएगा और उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. द क्वेश्चन नंबर 4 इज use Cramer's rule to solve the following system of equations. Very simple question. Cramer's rule और determinant method के हमें काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में किए हैं, where delta, delta 1, delta 2 and delta 3. If our linear equation in only two variables, then we make the delta, delta 1 and delta 2. And if the linear equation is three variable, then we form the delta, delta 1, delta 2 and delta 3. Okay, so these two questions are in the two variable, then delta is formed by the coefficient of x and y. थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूँ. Delta is formed by the coefficient of x and y, 2 3 minus 1 and 5, 2 3 minus 1 and 5. Delta is formed by the coefficient of x and y. Delta 1 in which first column is replaced by the constant 17, 6 minus 1 and 5, and delta 2 where second column is replaced by the constant 2, 3, 17 and 6. Then we find the value of delta, delta 1 and delta 2. Then value of x is the delta 1 upon delta and value of y is delta 2 upon delta. So these two questions are in the two variables and this question is in the three variables. तो इसमें तो डेल्टा फॉर्म होगा, डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x, y and z, 1 2 3 2 4 2 3 1 9, and delta 1 where first column is replaced by the constant 6 7 and 14. फर्स्ट कॉलम को हम कांस्टेंट 6 7 14 से रिप्लेस करेंगे, देन दिस इज डेल्टा 1, एंड सेकंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट 6 7 14, देन दिस इज डेल्टा 2, एंड द थर्ड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट 6 7 14, देन दिस इज डेल्टा 3. सभी का एक्सपेंशन करके वैल्यू फाइंड करनी है. देन x इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. तो उससे हम वेरिएबल x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, नॉट बी क्वेश्चन आपको करना है. Use Cramer's rule and prove that following system of equations are inconsistent. Okay, then first one is 2x minus y equals to 5, 4x minus 2y equals to 7, and second one is x plus y plus z equals to 1, x plus 2y plus 3z equals to 2, 3x plus 4y plus 5z equals to 3. So this is our fifth question.
Okay. The question number 5 is use Cramer's rule, means determinant method and prove that following system of equations are inconsistent. हमें Cramer's rule और determinant method को use करके ये प्रूफ करना है दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। मींस तो यहाँ हमारी कंडीशन अप्लाई होगी, तो वहां मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन दिस सिस्टम हैज वन यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। And second condition is if delta equals to 0 and delta 1 equals to delta 2 equals to delta 3 equals to 0, then the system may be consistent or inconsistent. If system is consistent, then it have infinitely many solutions. And the third one condition जो कि इसमें अप्लाई होगी, if delta equals to 0 and one of them delta 1, delta 2 and delta 3 is not equals to 0, तीनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम एक तो 0 नहीं होना चाहिए। मींस डेल्टा 1 and delta 2 and delta 3 in which one of them is not equals to 0, then the system is inconsistent and system have no any common solution। तो हमें क्या करना है, इसमें डेल्टा फाइंड करना। डेल्टा इज फाउंड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, बट डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। आफ्टर देन वी फाइंड द डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। वो आपको फाइंड करना आता है। डेल्टा 1 में क्या करना, फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट एंड डेल्टा 1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एंड डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट और डेल्टा 2 भी 0 नहीं हो सकता। दोनों में से कोई एक 0 नहीं हो या दोनों भी 0 नहीं हो, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली 3 वेरिएबल्स में भी यही करना है। फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। Okay, delta is found by the coefficient of x, y, z and delta is equals to 0, means delta की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई एक 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से एटलीस्ट 1 तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 2 0 हो लेकिन एक 0 नहीं होना चाहिए। 2 0 के इक्वल नहीं हो सकते या तीनों भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना। नॉट इट।